हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत के अंतर्गत। देखिए, ये चैप्टर जो होगा कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये जो है चैप्टर काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है हम भारत के जो है जलवायु के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और उसके हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। लेकिन आपको पता है, ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the distribution of annual rainfall. That is the most important. I have shown the map. There is the most important rainfall of the yearlies. Annual rainfall is the most important. Is a find that recognize of variation in the average annual rainfall are very pronounced. There is an important point here. And the map is also shows there is a maximum rainfall and minimum rainfall, the steady. The distribution of map of rainfall show that is the northeast part of Jammu and Kashmir and extremely to western Rajasthan receive a rainfall of the less than 20 centimeter here. On the other hand, their best coastal plain is the sub-Himalayan area of the northeast India is included to the Shillong plateaus receive more than 200 centimeter of annual rainfall here. Southern slope of the Kashi Jayanta Hills is a particularly there is a Cherrapunji Valley receive the highest rainfall is to the 1000 centimeter. There is a most important point here. Cherrapunji is a valley receive their highest rainfall is getting to the 1000 centimeter in the world. Starting for there is southern coastal of Gujarat, there are ISO height of the 200 centimeters and the run some what is a parallel to the coastal of Western Ghat up to the Kanyakumari. To the east of the Western Ghat, there is a rainfall drop to the adopted to below to the 60 centimeter over to interior Maharashtra and Karnataka here. The most part of Punjab, Haryana, Central and the eastern Rajasthan and western Gujarat also receive a rainfall of above the 60 centimeter here. And starting from to the southern western parts of Jammu and Kashmir, there are ISO height of the 100 centimeters. The move easternwards up to the east of Allahabad, from where is a band to be a west and southwest. Running over the western Madhya Pradesh, eastern is a Maharashtra and northern Andhra Pradesh it is joined to the eastern coastal near to Visakhapatnam. To the western and the southern west of the ISO height and their area receive a less rainfall. Some part of the Coromandels is a coastal receive a rainfall of more than 100 centimeter. The area receive less than 100 centimeter of the rainfall depend upon mean of the irrigations of agriculture activity. There is an important point here. In India, distribution of the rainfall, particularly of the southwest monsoon, has a close relationship with the relief. Hence, it is even described as a relief and orographic rainfall. By on the large place with the highest altitude have a greater chance to be a catch more rainfall than place with the less altitude. And the direction of the moisture wind also is this matter. There is an important point. The direction of the moisture wind also the matter for this rainfall here. The important point here in the box, the distribution of annual rainfall in different parts of India shown in the following trend here. The first year the rainfall is decreased
as one move from to Kolkata to Amritsar. The rainfall decreased as one move from Kolkata to Amritsar and showed a decline tend toward interior from the coastal area on Deccan Plateau. And northern eastern part receive a more rainfall than northern western part of India. The area lying on the windwards is a side receives a more rain than to the area lying on the leeward side. There is an important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पॉइंट, वार्षिक वर्षा का वितरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम मैप करेंगे तो ये बात को और भी जो है विस्तृत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वार्षिक वर्षा का वितरण किस प्रकार होता है। तो मैप भी जो है काफ़ी कुछ रहेगा, तो मैप जो है हम करेंगे अंतिम चरण में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वार्षिक वर्षा का वितरण किस प्रकार जो है भारत में रहता है। कहते हैं भारत में औसत वार्षिक वर्षा के वितरण के प्रादेशिक विभिन्नता काफ़ी स्पष्ट होता है कि भारत में जो है औसत वार्षिक वर्षा के वितरण जो होती है प्रादेशिक विभिन्नताओं को काफ़ी स्पष्ट होती है। वर्षा के वितरण जो है मानचित्र से यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग व राजस्थान के धूल पश्चिम भागों में वर्षा जो होती है 20 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जम्मू और कश्मीर और जो है पूर्वी भाग जो है राजस्थान के धूरी पश्चिमी भागों में जो है वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरी ओर पश्चिमी तटीय मैदान जो है उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्रों के साथ शिल्लोंग पठार पर जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। कहते हैं खासी जयंतिया के दक्षिण ढलानों से खासकर चेरापूंजी घाटी में जो है 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। कहते हैं 200 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा गुजरात के दक्षिण तट से आरंभ होकर पश्चिमी घाट के तट के जो है समांतर चलती हुई कन्याकुमारी तक ये पहुँचती है। पश्चिमी घाट जो है पूर्व में वर्षा अचानक जो है 60 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। कहते हैं 100 सेंटीमीटर की जो है समवर्षा रेखा जम्मू व कश्मीर के दक्षिण पश्चिमी भागों से आरंभ होकर पूर्व की ओर इलाहाबाद तक जो है जाती है और यहाँ से वह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर जो है मुड़कर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र और जो है उत्तर आंध्र प्रदेश में गुजरती हुई विशाखापट्टनम के पास पूर्वी तट पर मिल जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। इस समवर्षा रेखा को जो है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम स्थित क्षेत्र में वर्षा कम होती है। कहते करोमंडल तट के कुछ भागों में जो है 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है और कहते हैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा आने वाले भाग जो है कृषि के लिए सिंचाई के साधनों पर निर्भर करते हैं। इसी बात को अगर हम मानचित्र पे देखें तो ये स्पष्ट कर देता है कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा जो है चेरापूंजी साइड ही जो है नोट किया गया है, यानी अरुणाचल प्रदेश के साइड जो है चेरापूंजी, ये देखिए यहाँ पर जो है दिख रहा है, जहाँ पर जो है पूरा डार्क किया हुआ है। तो सबसे अधिक रेनफॉल जो है यहीं पे होता है, यानी जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है इसी क्षेत्र में दिखाया गया है। अगर बात करें हम कि यहाँ पर 300 से जो 400 जो है कुछ क्षेत्र जो है आपको केरल के दिख रहा होगा और महाराष्ट्र साइड भी दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाता है कि भारत की वार्षिक वर्षा जो है वितरण किस प्रकार होता है। अगर आप देख सकते हो तो ऊपर जम्मू और कश्मीर साइड जो होता है और इधर देख लीजिए राजस्थान के साइड, तो यहाँ पर जो है 0 से 10 सेंटीमीटर वर्षा ही नोट किया गया है और राजस्थान के साइड 0 से 10 के साथ जो है 20 से 40 भी दर्शाया गया है और 20 से 40 के साथ 40 से 60 भी दर्शाया गया है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर वर्षा का जो है मात्रा बहुत ही कम होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को ये मैप को में दर्शाया गया है, जो कि ज़रूरी भी है। कहते हैं अगर हम पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। देखिए कोलकाता से अमृतसर की ओर जाने पर वर्षा कम होती चली जाती है, यानी कोलकाता से अमृतसर की ओर जाने पर जो है वर्षा कम होती जाती है। कहते हैं दक्कन के पठार पर जो है तट से जो है आंतरिक भागों की ओर वर्षा कम होती चली जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि दक्कन से पठार पर जो है तट से आंतरिक जो है भागों की ओर वर्षा कम होती चली जाती है। कहते हैं भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में जो है उत्तर पश्चिमी भागों की तुलना में वर्षा अधिक होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी भारत के उत्तर पूर्वी भागों में जो है उत्तर पश्चिमी भागों की तुलना में वर्षा अधिक होती है। कहते हैं पवनाभिमुख जो है ढलानों पर पवन जो है विमुख ढलानों की तुलना में वार्षिक वर्षा जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है।
अगर आखिरी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर साफ हो जाता है कि भारत में खासकर दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त वर्षा के वितरण का जो है उच्चवाद से गहरा और काफ़ी संबंध रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में खासकर जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त वर्षा के वितरण का जो है उच्चवाद से गहरा संबंध होता है। अंततः इस वर्षा के जो है उच्चवाद से जो है पर्वतकृत वर्षा भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम जो है पर्वतकृत वर्षा भी कहते हैं, या इसे उच्चवाच भी कह सकते हैं। मोटे तौर पर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर अधिक वर्षा प्राप्त करने के अवसर उन स्थानों की तुलना में अधिक होती है जो कम ऊंचाई वाले हों। वर्षा की मात्रा पर जो है आंध्र पवनों की दिशा का भी प्रभाव काफ़ी यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।